A very good morning to all my dear students. This is Neetu ma'am and welcome you all to the educational platform of Defence Services Academy. We have started an NDA Crash Course 2020 and I am here to teach you English, and as we have started the rules, the grammar rules for revising the whole grammar. The rules which will help you in spotting the errors, sentence improvement and sentence completion. The rules which will help you in solving jumbled words, sequencing of sentences. ये सारे rules बेटा आपको ये सारे segments में work करेंगे. Now we have done 40 rules in 3 days. Now today I am just here with the questionnaires so that you all can apply all those rules with the technique, with the logic. And you will analyze yourself as you have learned the rules, so whether you are able to apply those rules or not. So we will solve some of the questions based on the errors of parts of speech. वो verb का error हो सकता है, वो noun का error हो सकता है, वो tense का error हो सकता है. So you have to apply your logic, your trick and the techniques. I'll help you in solving the exercise and we'll solve as many questions as we can today. So let's start. Now see how the question pattern will be. As you all know, in spotting the errors, you will get a sentence divided into 4 parts, A, B, C, D. In those 4 parts, you have to check out which part is erroneous. That means which part is having an error. If you feel the whole sentence is correct, so the last option, D option, is no error option. So you can choose no error option also if the sentence is without error. And if there is an error in any of the part, you can choose the part accordingly. Okay, now the next. Now see, this is one sentence. Okay, now if you feel you are having error in D part, you have chosen no error. But you cannot choose 2 parts, B and D. You have to only choose 1 part as an answer. Second thing, there is a negative marking also. So just be sure of your answer. Clear? Now check out this sentence. The young child sing a very sweet song. The young child sing a very sweet song. We have done tenses rules. Use your logic. किस पार्ट में एरर है बेटा? चेक करो उसमें किस पार्ट में एरर है. दिख रहा है कहीं एरर? Now see this singed. The young child singed a very sweet song. हम जब verb forms करते हैं, sing, sang and sung. V1, V2, V3. Sing, sang, sung. Now what is the error part? This is the error part. It should be sang in past tense. It should be sang in the past tense. So let's check out whether the answer is correct or not. अब आप इसमें answer क्या choose करेंगे? B, because B part is erroneous. Now how we will check out? Let's see. Now one more sentence. We worked very hard throughout the season. We worked very hard throughout the season. Very hard throughout the season. क्या error होगा? Let's check it out. Now see. The word sing is wrong. I told you the word singed is wrong. Now check out the next answer. Now see. D is the correct answer because as I haven't marked any error. So that is no error sentence. अब याद रखने वाली बात ये है बेटा, इसमें आप चूज करोगे B part as an answer, इसमें आप चूज करोगे D part as an answer, because इसमें B part में error है, इसमें कोई error है ही नहीं. See, D is the correct answer as sentence does not contain any error. इसमें कोई error है ही नहीं. तो समझ में आया आंसर ऑप्ट कैसे करना है? जो पार्ट रॉन्ग है वो पार्ट चूज करेंगे, अगर पूरा सेंटेंस करेक्ट है तो नो एरर चूज करेंगे. क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस. सी, माय फ्रेंड डिड नॉट सी मी फॉर मेनी इयर्स व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक. Check out this sentence. My friend did not see me
when I met him last week. हमने एक रूल किया था कि जब टाइम मेंशन है तो पास्ट टेंस या V2 फॉर्म यूज होगा. क्लियर? मैं आपको इसलिए ये बता रही हूं कि जो सेंटेंस में एरर आएगा वो इतना लॉजिक के साथ आएगा कि आप रूल्स अप्लाई करते समय कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे. लेट्स चेक. हमने ये रूल किया था कि टाइम सिग्नल वर्ड्स जहां होंगे वहां V2 फॉर्म होगा. तो यहां पर डिड नॉट पास्ट टेंस के लिए यूज है. ठीक है, ओके. नाउ व्हेन आई मेट, यहां पास्ट टेंस के लिए यूज है, यहां पे भी पास्ट टेंस के लिए यूज है. तो टाइम मेंशन किया है तो पास्ट टेंस यूज किया है, दैट मीन्स करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट. गलती कहां है? रिमेंबर हमने एक सेंटेंस किया था व्हेन देयर आर एक्शंस इन द पास्ट टेंस. जब पास्ट टेंस में 2 से 3 एक्शन हुए हैं, अगर 2 एक्शन हुए हैं, द अर्लियर एक्शन विल बी इन द अर्लियर एक्शन will be in the past tense, past perfect. Earlier action will be in the past perfect. That means had plus V3. Check out the sentence. My friend did not see me for many years. When I met him last week. मैं उससे पहले मिला कि वो मुझसे पहले नहीं मिली थी. जब मैं उससे मिला उससे पहले मैं उससे बहुत सालों से नहीं मिली थी. अब इसको दूसरे टेक्निक से कैसे करेंगे? यहां फॉर मेनी ईयर्स दिया है, जहां सिंस और फॉर दिया रहता है. सिंस और फॉर दिया रहता है. सिंस और फॉर परफेक्ट टेंसेस में लगते हैं, ये आपको याद है. सिंस और फॉर परफेक्ट टेंस में लगते हैं. प्रेजेंट टेंस है तो सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट. पास्ट टेंस है तो सिंस और फॉर पास्ट परफेक्ट. यहां आपको 2 हिंट मिल गई है. एक तो 2 एक्शंस हैं, एक एक्शन V2, एक एक्शन पास्ट परफेक्ट. सेकंड, पास्ट परफेक्ट एक्शन कौन सा? जो अर्लियर हुआ है. थर्ड, सिंस और फॉर दिया है तो पास्ट परफेक्ट यूज होगा. अब पास्ट परफेक्ट यूज कहां होगा? यहां पे. दिस इज द एरर पार्ट. डिड नॉट सी, हाँ डिड नॉट सी ना आके हैड नॉट सीन आएगा. माई फ्रेंड हैड नॉट सीन मी फॉर मेनी ईयर्स. मेरी फ्रेंड्स मुझसे बहुत सालों से नहीं मिली थी पहले. When I met him last week, जब मैं उससे पिछले हफ्ते मिले. तो यहां टाइम मेंशन है तो ये पास्ट टेंस ठीक है. अब ये पास्ट टेंस है, एक V2 फॉर्म दिया है, एक V2 फॉर्म है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होना ही चाहिए. तो यहाँ पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है. अब यहाँ पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, आपको हिंट मिल गई. फॉर दिया है, सिंस और फॉर मीन्स परफेक्ट टेंस, दैट मीन्स एरर इस पार्ट में. Okay, now the next sentence. Now see, he drank once again as he was thirsty. He drank once again as he was thirsty. क्या गलत है इसमें? Drink, drank, drunk. Once again as he was thirsty. What's the error? So students, what's the error? We have done, अभी past tense का rule किया है हमने. This is V2. This is past tense. Now see, past tense है, V2 फॉर्म यूज है. We have done. अगर सेंटेंस का मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा. तो रीड द सेंटेंस वंस अगेन. इज इट करेक्ट? या, दिस सेंटेंस इज करेक्ट. तो ऑप्शन इज नो एरर, डी ऑप्शन. आंसर इज नो एरर, डी ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. नाउ सी दिस. With a view to help the third world countries. The IMF, what do you mean by IMF? The International Monetary Fund and the World Bank keep sending their experts to different regions of the world. Read the sentence once again. जब sentence lengthy हो बेटा, उसको 2 से 3 बार पढ़ो. See the verb forms. With a view to help. ये 2 plus V1. That means infinitive. Now the IMF and the World War keep sending. This is present
continuous. This is present continuous. And the World Bank keeps sending their experts to different regions of the world. Now, with a view to help the third world countries. Now, view to help, उनको help करने के लिए एक process continue हो रहा है. See, the IMF and the World Bank keep sending. वो भेज रहे हैं. Continuous process है. तो जब वो अपनी help भेज रहे हैं experts के form में, they are sending their experts. क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि वो help जा रही है, वो help कर रहे हैं. When हम 2+V1 लेते हैं, that means वो help करता है, वो help करते हैं. करते हैं नहीं, वो कर रहे हैं. This is known as parallelism. That means both the form should be in the same tense. यहाँ पर अगर present tense है, that means वो help कर रहे हैं और अपने experts को भेज रहे हैं. करते हैं और भेज रहे हैं, not connecting. तो यहाँ पर to help नहीं, in view of helping. This is the correct answer. Error is in A part. Error इस part में है. Now see, with a view of helping. Helping मतलब वो कर ही रहे हैं help और उसके लिए they keep sending. वो भेज ही रहे हैं. पूरा sentence एक ही tense में and that is known as parallelism. Now the next sentence. Now see, ever since the government announced its new policy, the private institutions had run into bad weather. Now what do you mean by bad weather? हमने ये idiom किया है. He ran into bad weather. Bad weather means suffering, problem में आ जाना, तकलीफ में आ जाना. This is an idiom. So you must have knowledge of idioms even because they come in the sentence. Now sentence में error क्या है? Check it out. Ever since the government announced, वहाँ आपको hint दी गई है since. Since कब use होता है? Since कब use होता है? Present tense में present perfect, past tense में past perfect. Now ever since the government announced its new policy, the private institutions had run into. No, जब भी government कोई नई policy announce करती है, जब भी government कोई नई policy announce करती है, सारे institutions problem में आ जाते हैं या आ जाते थे? problem में आ जाते हैं या आ जाते थे? problem में आ जाते हैं. So this is the error part. It should be have. It should be have. Since लगा है, perfect tense है. Check out the meaning. Whenever the government announce some policy, whenever the government announce a new policy, जो भी institutions हैं वो problem में आ जाते हैं, तो have लगेगा. Okay, now the next sentence. A series of lectures of Indian philosophy are arranged by the university. Check out the sentence. Series of lectures. हमने ये phrase किया है. A series of lights. A galaxy of stars. A bouquet of flowers. Now ये सारे जो phrases हैं, these are collective nouns. बहुत सारे हैं. A band of musicians. ये सारे phrases they are known as collective noun. And collective noun मतलब एक group मतलब singular subject. Singular subject will take singular verb with them. वहाँ देखो क्या लगा है? are. यहाँ क्या होना चाहिए? is. This is the correct answer. A series, क्योंकि ये singular subject है. Singular subject, singular verb because this is a collective noun. Class, army, bouquet, ये सब एक यूनिट माना जाता है. सिंगल यूनिट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. नाउ द नेक्स्ट.
The Prime Minister has said that India would not have spent so much on defense if some of the neighboring countries adopted the policy of restricting defense expenditure. Read the sentence. Now read the sentence once again. The Prime Minister has said, Prime Minister ने ये बोला है कि India would not have spent so much on defense. इंडिया ने इतना डिफेंस पे स्पेंड नहीं किया होता अगर if some of the neighboring countries, कुछ neighboring countries ने पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर अडॉप्ट की होती तो बेटा जब कंडीशनल क्लॉज आता है, कंडीशनल क्लॉज में इफ है, वुड नॉट हैव है, तो वहां पर हैड प्लस V3 चाहिए। अब इसको चेक कैसे करेंगे? अगर नेबरिंग कंट्रीज ने पहले ऐसी कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की होती तो हम भी अपना डिफेंस का एक्सपेंडिचर रेस्ट्रिक्ट करते। तो अर्लियर एक्शन कौन सा? अडॉप्ट वाला, कि अगर उन्होंने इससे पहले कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की होती तो हम भी वही करते, उन्होंने नहीं की तो हम भी नहीं कर रहे। तो यहां पर एरर, यहां पर इट शुड बी हैड अडॉप्टेड। तो अगर सम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ने पहले से ही ऐसी कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की होती, हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, पहले से ही नहीं हुआ होता तो हम भी आगे नहीं करते। दैट मीन्स जो अर्लियर एक्शन है वो हैड प्लस V3। नाउ द नेक्स्ट, सी दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ यू विल स्टैंड ऑन इट। नाउ रिमेंबर हमने कल किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज नॉट यूज इफ द सेंटेंस इज कंडीशनल या टाइम डिस्टेंस की बात हो रही है। यहां पर दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ कंडीशन, अगर कंडीशन है, टाइम की बात हो रही है, कंडीशन है, टाइम की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं होगा, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, तो ये विल नहीं। ठीक है। सेकेंड ट्रिक टू चेक, जब यहां विल यूज हो गया, एक बार विल यूज हो गया, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स, ये छोटा सा टेबल टूट जाएगा अगर तुम इस पे खड़ी होती हो तो, खड़ी होगी तो नहीं, खड़ी होती हो तो यहां पर यू विल स्टैंड नहीं, इफ यू स्टैंड ऑन इट, ये हमने कल ही रूल किया है, इफ यू स्टैंड ऑन इट। तो एरर इज इन C part. Now the next. Now Shobha asked the dealer what was the price of that bicycle and whether it is really made in Germany. पूरा सेंटेंस पढ़ो और मुझे बताओ एरर कहाँ है। शोभा asked the dealer, शोभा ने डीलर से पूछा what was the price. हम जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं हम कॉस्ट पूछते हैं कि प्राइस पूछते हैं। Now this is cost price, दिस इज सेलिंग प्राइस। आप जब भी कुछ खरीदने जा रहे हैं आप डीलर से उसका सेलिंग प्राइस पूछते हैं, कॉस्ट नहीं पूछते। कॉस्ट मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दैट कमोडिटी। आप ये नहीं पूछ रहे कितने में ये चीज बनी है, आप ये पूछ रहे हैं आप कितने में बेचोगे। That means selling price, that means price. So never ask cost, just ask the price when you are buying something. जब भी कोई चीज खरीदने जा रहे हो उनसे प्राइस पूछो, कॉस्ट नहीं। तो प्राइस इज यूज्ड हियर। उसके बाद ऑफ दैट बाइसिकल, ओके, उसने उस साइकिल का प्राइस पूछा, कीमत पूछी, एंड वेदर इट इज रियली मेड इन जर्मनी, और ये भी पूछा क्या सच में ये जर्मनी में बनी है। आई हैव यू एनी डाउट इन दिस सेंटेंस? कुछ ऐसा एरर पार्ट लग रहा है? आर यू एबल टू फाइंड सम एरर इन दिस? नो, this is no error sentence. The answer is no error. Now the next. See, when we consider all the factors which are many, the number of schools, the
number of schools dropout are quite disturbing. Now what do you mean by this? The number of school dropouts? When we consider all the factors which are many. See, जब हम सारे factors को consider करते हैं जो बहुत सारे हैं. अब ये sentence यहाँ pause हो गया. We consider all the factors. अब ये many किसके लिए लगा है? ये many all the factors के लिए लगा है. Clear? वहाँ comma दिया है. सेंटेंस का पूरा पोस्टमार्टम करना है. आगे देखो, द नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स, द नंबर ऑफ, रिमेंबर मैंने आपको रूल दिया था, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ. क्या डिफरेंस है? द डेफिनेट आर्टिकल मतलब फिक्स्ड, मतलब एक, मतलब सिंगुलर. A number of means variable, change हो रहा है. यहां पर plural. This is singular subject, this is plural subject. Singular subject will take singular verb. Plural subject will take plural verb. Now, अब बताइए, आप खुद बताइए आंसर क्या है. The number of singular subject, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब विद देम. यहां पर द नंबर ऑफ लगा है. द नंबर ऑफ में क्या आएगा? यहां पर इज. दिस इज द एरर पार्ट. वहां पर इस आएगा बिकॉज द नंबर ऑफ, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. It cannot be forecasted how society will emerge a generation hence. Now, ये हम forecast नहीं कर सकते कि society कैसे emerge होगी. Now, forecasted, it cannot be forecasted. Now see, it cannot be forecasted. Sentence कौन से form में है? Passive voice में be plus verb लगा है. It cannot be फोरकास्टेड कि सोसाइटी कैसी इमर्ज होगी, कैसी इमर्ज होगी. सो दिस इज नो एरर सेंटेंस. नाउ द नेक्स्ट. सी, ही रिफ्यूज टू आंसर द क्वेश्चन डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिज साइलेंस विल बी इंटरप्रेटेड एज गिल्ट. रीड द सेंटेंस. ही रिफ्यूज टू आंसर द क्वेश्चन. उसने उस क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया. डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, इसके बावजूद कि हिज साइलेंस, उसकी खामोशी, विल बी इंटरप्रेटेड एज गिल्ट. उसकी खामोशी उसको कसूरवार ठहरा सकती है. उसकी खामोशी उसको दोषी बना सकती है. बना सकती है कि बनाएगी, बना सकती है कि बनाएगी. सी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिज साइलेंस विल बी इंटरप्रेटेड. इंटरप्रेटिव मीन्स आपको वो मीनिंग समझ में आ रहा है, लोग उससे वो समझेंगे. तो उसकी खामोशी से लोग उसको कसूरवार समझ सकते हैं. समझेंगे नहीं, समझ सकते हैं. कंडीशन है, समझ सकते हैं. दैट मीन्स कैन या कुड. नाउ कैन या कुड, he refused to answer the question despite the fact that his silence could be. Would be nahi, silence could be. This is the error part. It should be could be. लोग उसको दोषी समझ सकते हैं. Clear? Now the next sentence. As soon as the principal entered the school, all the students approached him and report the matter. As soon as the principal entered the school. So students, after reading the sentence, what you found? The sentence is in past tense. See this. This is past tense, V2 form. हमने किया है whenever the sentence in the main clause is following the past tense, the subordinate clause must be in the past tense. Now check out this verb. This is V1. होना क्या चाहिए? Reported.
होना क्या चाहिए? रिपोर्टेड, बिकॉज अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. Well, I spent 6 or 7 years after high school trying to find a job for me but could not succeed in it. पढ़ो सेंटेंस को, क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? Now see, सेंटेंस का टेंस पास्ट. Now spent and spent. V1, V2, V3. अब well, I spent 6 or 7 years after high school trying to find a job for me but could not succeed in it. मैंने स्कूल के बाद 6-7 साल एक जॉब ढूंढने में निकाल दिए थे, पर could not, मुझे उस चीज में सक्सेस नहीं मिली थी. सेंटेंस कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में. ये यहां पर कौन सा वर्ब यूज है? V1. व्हाट इट शुड बी? V2. एरर इज इन ए पार्ट. डन. नाउ द नेक्स्ट. A physiologist in the last century demonstrated that puppies will die if kept awake for more than 5 days. Check out the sentence. Check out. A physiologist in the last century demonstrated. Now sentence में कौन सा tense use है बेटा? See, last century demonstrated means past tense. Sentence कौन से form में चल रहा है? Past tense में. That puppies will die if kept awake. Again, ये भी V2 form, past tense. For more than 5 days. गलती कहाँ है? गलती पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है. दिस विल इज एरनियस. विल का भी पास्ट टेंस वुड आएगा, विल नहीं. विल मीन्स सर्टेनली. हम यहाँ पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस में पूरे वर्ब फॉर्म है, तो विल की जगह वुड. तो एरर पार्ट इज बी. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट. मोर लेजर एज वेल एज एन अबंडेंस ऑफ गुड. सी, एज वेल एज लगा है. जब भी सेंटेंस में एज वेल एज, विथ, इन एडिशन टू, टुगेदर, टुगेदर विथ, ये सारे फ्रेजेस आते हैं, दे आर यूज्ड टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. दे आर पैरेंथेटिकल, मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. प्लूरल में नहीं काउंट होंगे, वो इसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब भी एज वेल एज, इन एडिशन टू, विथ, टुगेदर, टुगेदर विथ, अलोंग, अलोंग विथ, ये सारे फ्रेजेस यूज होंगे. दो सब्जेक्ट्स के बीच में उनको एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा. दे विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो यहां पर क्या होना चाहिए? इज. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट. It is high time that we send the answer. बहुत हो चुका, अब हमें आंसर दे देना चाहिए. Check out this. It is high time. Check out this. क्या होगा इसमें? It is high time. बहुत हो चुका, अब हमें आंसर दे देना चाहिए. ना याद रखना बच्चा, जब भी सेंटेंस में it is high time आएगा, इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा V2 फॉर्म ही यूज होगा. हमेशा और हमेशा इसके बाद V2 फॉर्म ही यूज होगा. कैसे लगेगा ये? नाउ सेंड, सेंट, सेंड. सेंड V1, सेंट V2, सेंट. क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा? इट इज हाई टाइम दैट वी सेंट. यहां पर सेंट आएगा. Now check out the next sentence. Bacteria is probably the most common form of life on earth. Bacteria is. Now, do you know the singular plural of bacteria? Bacteria
is plural. Bacterium is the singular of bacteria. तो यहां पर बैक्टीरिया की जगह बैक्टीरियम होना चाहिए. दिस इज रॉन्ग. अब आपका एरर ए पार्ट में है, क्योंकि या तो ये चेंज करो या ये चेंज करो. तो बैक्टीरियम इज या बैक्टीरिया आर. बैक्टीरियम सिंगुलर तो इज, बैक्टीरिया आर. That means error is in A part. Now the next sentence. Now will you please remind him to switch off the fans when he left? Check out this. Check out this. Will you please remind him to switch off the fans when he left? क्या तुम उसको ये याद दिला सकते हो जब वो कमरे से जाता है तो दरवाजा या फैन बंद करके जाए. Switch off the fans when he left. Left यहाँ V2 फॉर्म. जब वो गया था तब फैन का बंद करके जाए कि जब वो जाए तब फैन बंद करके जाए? क्या आएगा उसमें? लेफ्ट मीन्स पास्ट टेंस. तो क्या तुम उसे ये याद दिला सकती हो कि जब भी वो कमरे से जाता है या जब भी वो कमरे से जाए तब फैन बंद करके जाए? जब भी वो कमरे से जाए. तो लेफ्ट इज रॉन्गली यूज्ड हियर. इट शुड बी लीव्स. व्हेन ही लीव्स, he plus leaves. Clear? Now the next sentence. It's time you started working. Now अभी हमने एक सेंटेंस किया था it's high time. Now see, it's high time. जब भी सेंटेंस में it's high time यूज होगा, it's high time means long awaited event. इसके बाद V2 यूज होगा, याद रखना. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब भी सेंटेंस में इट्स टाइम यूज होगा, सेंटेंस में इट्स टाइम यूज होगा, उसके बाद V1 यूज होगा. जस्ट मेमोराइज दीज टू रूल्स. इट्स हाई टाइम के बाद V2, इट्स टाइम के बाद V1. इट्स हाई टाइम मीन्स बहुत टाइम हुआ, लॉन्ग अवेटेड इवेंट, बहुत टाइम से हम उसका वेट कर रहे थे. इट्स टाइम मीन्स बहुत हुआ, दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस. तो इट्स टाइम के बाद V1, इट्स हाई टाइम के बाद V2. नाउ एज यू ऑल आर माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आपको एरर दिख गया है. कहाँ है एरर? एरर यहाँ पर है. यहाँ पर स्टार्टेड नहीं चाहिए, यहाँ पर यू स्टार्ट चाहिए. द आंसर शुड बी यू स्टार्ट वर्किंग. बहुत हुआ, अब तुम्हें काम शुरू कर देना चाहिए. इट्स टाइम यू स्टार्ट वर्किंग. अब वक्त आ चुका है, तुम्हें काम शुरू कर देना चाहिए. तो इट्स टाइम के बाद V1, इट्स हाई टाइम के बाद V2. नाउ द नेक्स्ट.